Hello students, today we are going to see transformation of sentences. So here is the presentation of that transformation of sentences by Sanket sir. I am Sanket. Please subscribe my channel Sanket Purohit. So what do you mean by transformation? Okay, so transformation is nothing but process of changing the sentence without changing its meaning as per the direction given इन द क्वेश्चन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग कुछ भी चेंज करते हो, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जो गिवन सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ विच टॉपिक्स आर इंक्लूडेड ओके इन transformations? Then there are affirmative to negative and vice versa, change the voice, which we have already completed in our online session, right? Then it is add question tag, assertive to interrogative and vice versa, means interrogative to assertive भी आ सकता है, assertive to exclamatory and vice versa, तो exclamatory to assertive भी आ सकता है, change the degree, that is positive, comparative and superlative, ठीक है, then your simple compound complex sentences, then use no sooner than, and lastly use or remove to. Now we will go one by one, topic by topic. What are affirmative and what are your negative sentences? So no, not, never, neither, nor, nothing and none are the 7 negative words. अगर ये कोई भी सेंटेंस में आप लोगों को ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं like no, not, never, neither, nor, nothing and none, then the sentence is known as what? Negative sentence. So if the sentence contains one of the above negative word, it is called negative sentence. Then, on the other hand, if it does not have any of these words, then it is called affirmative sentences. और अगर ये कोई भी words ना हो, तो ऐसे words को या ऐसे sentences को हम लोग क्या बोलेंगे? Affirmative sentences. You can also say affirmative sentence as positive sentence. Okay. Now, rules. Rules to convert अफॉर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए रूल्स दिए हुए हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है, जब आप लोग रूल्स चेंज करो तब, सॉरी सेंटेंस चेंज करो तब उसका मीनिंग जो है, द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका पूरा मार्क्स जो है वो गलत हो जाएगा। So points to consider when changing affirmative sentences to negative sentences. So when changing an affirmative sentence to negative sentence, use one of the given negative words, but do not change the meaning of the sentence. यूज एंटोनिम्स वेर रिक्वायर्ड, मतलब कुछ भी लाइंस है, एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका एंटोनिम्स यूज करो। एंटोनिम्स मींस अपोजिट वर्ड्स यूज करो, एंड वन ऑफ द नेगेटिव वर्ड शुड बी used so that the meaning of the statement should not be changed. Okay, so certain examples: only a few women can keep secrets. So only a few का हम लोग अपोजिट वर्ड देखेंगे, not many women can keep secrets. ठीक है, ये not आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, few का many कर दिया एंड बाकी का as it is रखा है. So your sentence is not changed. Then he shall always remember the good golden days. So he shall never forget. Remember का opposite forget. Always का हम लोगों ने नेगेटिव वर्ड ले लिया, never forgot the good golden days. Now only the rich can afford BMW. So none but the rich can afford a BMW. Okay, next, I hate both tea and coffee. So neither I like tea nor coffee. Okay, next, Delhi is the biggest city of the northern India, and no other city is so big as Delhi in northern India. So ये सारे जो sentences है, ये ऊपर वाले वो सारे के सारे क्या है, affirmative sentences है, और उसका जो answers है वो क्या हो गए आप लोगों के negative में, लेकिन we have not changed what, we have not changed the meaning of the sentences. Now next is negative to affirmative sentences.
So rules to consider negative to affirmative sentences. Points to be considered when negative sentences to affirmative sentences. First, while changing negative sentence to affirmative one, remove the given negative words. कौन से negative words है? No, not, never, neither, nor. ये सारे words निकल जाने चाहिए. But do not change the meaning of the sentence. Now, उसके अलावा हम लोग कौन से words use कर सकते हैं? To convert negative into affirmative, then you can use words like refuse, fail to, unable, without, in absence of, hardly, unwilling, avoid, etc. Even you can use antonyms. Antonyms मतलब आप लोग opposite words भी use कर सकते हैं. चलो तो थोड़े बहुत examples देख लेते हैं. Now we are going to see the examples of converting negative sentences into affirmative sentences. So next example, negative to affirmative sentences. No one but stupid would answer this. So only a stupid would answer this way. No one but stupid would answer this way. So only a stupid would answer this way. Next, father did not allow us to go on a picnic. So father refused us to go on a picnic. यहाँ पे एक भी negative words नहीं दिख रहे हैं. That means we have converted into affirmative sentences. Then we went to exhibition, but Soham did not accompany us. So we can use the word without. We went to exhibition without Soham. Okay. Next, do not touch the electric wires. Then avoid touching the electric wires. Last, no one was present in the class, so everyone was present का opposite absent in the class. Okay. Next, add a question tag. This is really very important. Question tag क्या होता है? ठीक है. First of all, try to understand what is question tag. So question tags are short addition to the sentence asking for agreement or confirmation. जैसे I am doing this. Ain't I? बराबर है. आप अपने ही आप को क्वेश्चन करते हो या कंफर्मेशन मांग रहे हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टैग. नाउ नेक्स्ट, certain rules we have to follow. Rules for question tags. First, points to consider when adding a question tag to a sentence. देखो पूरा एक अच्छे से टेबल दिया है. स्टेप वन क्या होना चाहिए? कॉपी द सेंटेंस टू विच क्वेश्चन टैग हैज टू बी एडेड एंड पुट अ कॉमा आफ्टर इट. सो आप लोगों को एग्जांपल दिया है शी वाज स्लीपिंग, तो वो सेम प्रोसीजर मैंने स्टेप वन यहाँ पे लिखा है शी वाज स्लीपिंग एंड कॉमा लगा दिया. यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट यूज करना है. जैसे शी वॉज स्लीपिंग, तो ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब का आपका नॉट फॉर्म नेगेटिव वर्ड्स तो वॉजंट. ठीक है. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. तो शी वॉज स्लीपिंग, वॉजंट शी. Okay, so in this way you have to proceed, you have to follow 3 steps. Step number 1, पहले जो क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा कॉपी करो एंड कॉमा डालो. एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट यूज करो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो, या तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्ट्रेट अवे ले लो एंड देन पुट द सब्जेक्ट. तो पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और ये क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है. अगर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, पूरा अच्छे से लिखा होगा, फिर भी आप लोगों के मार्क्स कटेंगे. ओके. नेक्स्ट, बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग क्वेश्चन टैग. अगर आप देखोगे rules for adding a question tag to a sentence. Follow the flow chart given in the next slide for adding a question tag to given sentence. देखो अब ये जो flow chart है, this is really very important. Start कहाँ से करना है? Start. If a sentence is affirmative, the question tag will be negative and vice versa. जैसे मैंने बताया, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव होगा. Does the sentence have a helping verb? If yes, then use the helping verb in the sentence to form the question tag. ठीक है. And
use the pronoun given in the sentence to form the subject of the question tag. ये सिंपल है, देखो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर आप लोगों का सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है आपका, उसमें हेल्पिंग वर्ब है इफ यस है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों को क्वेश्चन टैग के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद आखिरी स्टेप क्या होगा, जो प्रोनाउन दिया है वो आप लोगों का सब्जेक्ट बन जाएगा ऑफ द क्वेश्चन टैग। What if the does the subject have a helping verb, ऐसा पूछा है। अगर नहीं है तो क्या करना है, तो आप लोगों को वो चेक करना है कि what is the tense of the sentence। ओके, तो आपका टेंस क्या होगा। If it is simple present tense, okay, if it is simple present tense, then find the subject of the sentence and use the verb do or does according to the table given in point number 4। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कब आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, I, we, then दे, अगर ऐसे वर्ड्स हैं आई वी दे यू, तो वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन टैग के लिए जो वर्ब होगा वो डू होगा। लेकिन ही शी और इट अगर आता है तो वहां पे आप लोगों का क्वेश्चन टैग के लिए क्या आ जाएगा, डस। बराबर है, ये किसकी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। व्हाट इफ द टेंस इज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस बट पास्ट टेंस, okay, then what we have to do, we have to use verb as did। okay, so use did as the verb of the subject and then what we have to do, यहाँ से straight forward ये copy करना है, use the pronoun given in the noun sentence in the form of subject of a question tag, and that's the end of it। अब वन बाय वन ये सारे रूल्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, वापस से, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन टैग समझ में आ जाए। एग्जांपल्स एड क्वेश्चन टैग। रूल नंबर 1, द फर्स्ट बेसिक रूल इज द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। सो योर फ्रेंड्स आर क्लेवर, तो फ्रेंड्स है तो आर है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब, आरंट दे, योर का क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट कम, देखो ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन टैग आया नेगेटिव, दे हैव नॉट कम, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैव दे। ओके, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, रूल नंबर 2, Rule number 2 says that if the sentence has helping verb, use the same verb to form a question tag। जैसे कि helping verb कौन से हैं, am, is, are, was, were, can, could, will, would, shall, should, may, might, do, did, does, have, had, etc। ये सब जो है उसको हम लोग helping verbs बोलते हैं। तो we have a card, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, haven't we, ठीक है। I am right, तो I am right, ain't I, देखो एमंट नहीं लिखते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ एमंट इज नथिंग बट ain't, वी हैव टू राइट ain't ओवर हियर। देन शी विल गिव यू हर बुक, तो won't शी, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में चला जाएगा तो won't शी। ओके, पास्ट टेंस में नहीं, सॉरी, विल नॉट शी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वो तो ऐसा मैंने आप लोगों को बोला ना, नॉट का शॉर्ट फॉर्म ले लेना है, तो won't शी। देन रूल नंबर 3 आप देखोगे, अब The subject of the question tag is always a pronoun, ठीक है, हमेशा वो pronoun होगा, noun यूज नहीं किया जाता है। देखो अमर एंड अकबर वर नॉट सिंगिंग, तो ऐसा नहीं आएगा कि वर अमर एंड अकबर, नहीं, अमर एंड अकबर दो जन है तो वरन वर दे आएगा यहाँ पे, ठीक है, वर दे were not singing, तो were they, and Mr. Kokiner has signed the document, तो hasn't he। ओके, यहाँ पे थोड़ा एरर है, वेरेंट की जगह वेर आएगा, वेर दे, एंड यहाँ पे क्या आएगा, hasn't। ओके, नेक्स्ट another Rule number 4. Rule number 4 is of two sides, this and the next one. If the sentence does not have helping verb, follow this step। अगर helping verb नहीं है तो क्या करना है, आप लोगों को टेंस फाइंड करना है। टेंस में भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो आप लोगों को या तो verb के लिए do यूज करना है और does यूज करना है। अब do कब यूज करना है और does कब यूज करना है, see the table
over here. I, we, you, they अगर होता है तो we have to use word do. He, she और it है तो we have to use word does. Okay. Now next. रूल नंबर 4 कंटिन्यू. अगर वो पास्ट टेंस रहा, ओके, इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस देन यूज did एज द वर्ब ऑफ एनी सब्जेक्ट. ओके, दिस मंकी लाइक्स बनाना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. सो डजंट इट, क्योंकि मंकी जो है वो इट में आएगा, ठीक है, ना ही वो सिंगुलर सॉरी मेल है ना फीमेल है, उसको हम लोग एनिमल में गिनती करते हैं. तो डजंट इट द पोस्टमैन सॉरी पोस्टमैन अराइव्ड लेट. अराइव्ड मीन्स ये आपका पास्ट टेंस है. तो डिडंट ही, ओके. आई लव मैंगोज, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एंट आई नहीं आएगा, बट क्या आएगा, डोंट आई. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टेबल में देखा, देखो क्या देखा हम लोगों ने, आई वी यू दे के लिए क्या लगेगा, डू. ही शी और इट के लिए क्या लगेगा, डज. ओके, चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन टैग खत्म होता है. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स assertive and interrogative sentences. तो पहले तो व्हाट आर assertive and interrogative sentences. किसी की सेंटेंस के पीछे अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो उसको हम लोग interrogative sentence बोलते हैं, और कोई भी सिंपल सेंटेंस हो तो उसको हम लोग assertive sentence बोलते हैं. कोई भी सिंपल, दैट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन अगर फुल स्टॉप है, बराबर है, पूरे सेंटेंस में अगर वो सिंपल सेंटेंस है, then it is said to be known as assertive sentences. And what is interrogative sentences? Those sentences we have question marks behind them. Then that is known as your interrogative sentences. What are interrogative and assertive sentences? Sentences that end with question mark is called an interrogative sentence, while an assertive sentence is a simple statement. Maybe it may be positive or negative. Okay. Now rules to convert assertive to interrogative. Okay, assertive to interrogative. What are the rules? Consider the following points while changing an assertive sentence to an interrogative one. नोट द रूल्स. यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ बताने के लिए दिया है. क्वेश्चन टैग्स जनरली अलग होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अलग होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल्स जो है वो सेम टू सेम आप लोगों के क्वेश्चन टैग्स के लगेंगे. सो note that rules for question tags and interrogative sentences are almost same. The only difference that can be noticed is in the formation of the interrogative sentences. देखो, he is better than her, तो अगर question tag होता तो isn't he आता, और यहाँ पे क्या आएगा, isn't he better than her, मतलब is not he better than her. स्ट्रक्चर जो है वो पूरा चेंज होता है. बाकी जो रूल्स है वो क्वेश्चन टैग के हो या आप लोगों के इंटरोगेटिव के हो, दे आर ऑलमोस्ट सेम. वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस, तो अगर क्वेश्चन टैग होगा तो क्या आएगा, कैन वी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव है, कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस, सो कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस. Okay, now note, it is important to note here that you should not write question tag when they are asked for interrogative sentences. यहाँ पे मैंने question tag सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है कि रूल्स जो है वो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, चेंजेस इज नथिंग बट सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता है. नाउ एग्जांपल्स देखेंगे. We were not born simply to die. तो ये कैसा सेंटेंस है, assertive है लेकिन नेगेटिव है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, were we born simply to die, question mark. Then nothing is greater than mother's love. Is anything, nothing का अपोजिट, is anything greater than mother's love. पीछे देखो हर एक में क्वेश्चन मार्क आता है. अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, your आंसर या जो मार्क्स मिलने चाहिए that will be completely zero. Sorry. The climate harms the skin. अब देखो यहाँ पे harms है, बराबर, तो आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, does this climate not harms the skin, क्योंकि आप लोगों का assertive अगर पॉजिटिव है, ये एक रूल खास याद रखो, अगर आपका क्वेश्चन या सेंटेंस अफर्मेटिव है, बराबर,
तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरोगेशन। जैसे ये वो बी बॉर्न सिंपली टू डाई, इज एनीथिंग ग्रेटर देन मदर्स लव। और ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, डज दिस क्लाइमेट नॉट हार्म्स द स्किन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव टू assertive। ठीक है, इंटरोगेटिव टू assertive के रूल्स। The only thing that should keep in mind while interchanging an interrogative sentence to assertive is that if interrogative sentence is affirmative, same rule है, the assertive sentence would be negative एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, अगर आपका इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो अगर पॉजिटिव है तो आप लोगों को कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, जब असर्टिव बनाओगे तो वो होगा आपका नेगेटिव। और अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है और उसको आप लोग अगर असर्टिव में कन्वर्ट हो करोगे तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, सो लेट अस सी एग्जांपल, कैन अ निग्रो चेंज हिज कलर। ये कैसा क्वेश्चन है, अफर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। निग्रो कैन नेवर चेंज हिज कलर। अब निग्रो जो होता है वो ब्लैकिश कलर के पीपल होते हैं, ठीक है, उसको निग्रो बोलते हैं। देन हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, एवरीवन। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे जब कन्वर्ट करोगे, एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। देन व्हाट दो यू हैव फेल्ड, इट डज नॉट मैटर दो यू हैव failed. Okay, next, assertive to exclamatory and exclamatory to assertive. So now what are exclamatory and what are assertive sentences? अगर क्वेश्चन के पीछे आप लोग हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, दिखा रहे हो, ठीक है, और पीछे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो a sentence that ends with exclamatory mark is called an exclamatory sentence and a simple statement is called an assertive sentence. Now rules to convert assertive to exclamatory। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आप लोगों को ए एन आता है, ए एन, तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो व्हाट से स्टार्ट होगा। और अगर ए एन ऐसा नहीं आता है तो आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, हाउ से। तो दैट इज द बेसिक रूल। Assertive to exclamatory. If the assertive sentence has an article like a or n, start the exclamatory sentence with n. With what? If not, then use how. Okay. This painting is wonderful. Neither a or n is there. So what we will do? How wonderful this painting is. And last में exclamatory mark आना जरूरी है. Then it is a very horrible sight. आ गया तो कहां से स्टार्ट होगा, वॉट अ हॉरिबल साइट इट इज। ठीक है, नेक्स्ट, शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली। यहाँ पे ए एन कुछ नहीं है तो हाउ ब्यूटीफुली शी डांसेस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नाउ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। अब एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव में अब आप लोगों को ये रूल तो याद रखना है, व्हाट होगा तो ए एन आ सकता है, हाउ होगा तो ए एन नहीं आ सकता है। दूसरी चीज, हम लोगों को बहुत सारे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे लाइक वेरी, वेरी मच, रियली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे so as to convert exclamatory sentences into assertive sentences. While changing an exclamatory sentences to assertive, remove words like how and what and add adverbs like very, very much, really, highly, etc. So, oh, that I were a bird. So, I wish I were a bird. Next, how sad the poor old widow looks. The poor old widow looks, ये सेम है, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया वर्ड डाल दिया, that is very sad. Next, what a beautiful scene this is. Okay, so this is a very beautiful scene. This is really very beautiful scene. ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे इंटरोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव
is over. Now change the degree. अब आप लोगों को पता होगा change the degree में सबसे पहले आप लोगों को 3 डिग्रीज पता होनी चाहिए. One is positive degree, another is comparative, and another is, last one is superlative. ठीक है. So तीनों को हम लोग one by one उसके रूल्स देखेंगे. The changing of degree is the process of changing adjectives in the form to show comparison. ठीक है, तो ये डिग्री चेंज करना is nothing but we are comparing one object with another one. Then there are three degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. नेक्स्ट नाउ पॉजिटिव डिग्री में कैसे स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, इफ सेंटेंस इज इन पॉजिटिव डिग्री एंड इट इज अफर्मेटिव. ठीक है, अफर्मेटिव है तो क्या होगा, इट विल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज एडजेक्टिव एज प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन. जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरमन. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. हम लोगों ने चेंज द डिग्री के एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किए हैं. पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. अगर अफर्मेटिव है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, देन एज. ये एज जो है वो कंपैरिजन के लिए है, और किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हरमन के साथ हो रहा है. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरमन. अब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, वर्ब, फिर यहाँ पे पहले नेगेटिव वर्ड आ जाएगा. देन यहाँ पे जैसे एज था ना, उसकी जगह सो एडजेक्टिव एज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन. जैसे ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हरमन. ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया है. अभी एग्जांपल स्टार्ट नहीं हुए हैं, याद रखना. नेक्स्ट इज योर कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरेटिव डिग्री के structure देख लो. If sentence is in comparative degree, it will have the following structure: subject plus verb plus adjective, then object of comparison. तो he is stronger than Herman. ठीक है, तो यहाँ पे strong का stronger और लास्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव. वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जैसे होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही यहाँ पे है. तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन हरमन. अब योर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो आप लोगों का ये क्या होगा, the final statement, or you can say the formation या structure: subject plus verb plus adjective, that is he is the strongest. the आना ही चाहिए. हम लोगों ने कल ही एरर करेक्शन खत्म किया है, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए. तो he is the strongest. ठीक है, चलो नाउ certain examples of converting. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं. अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये सुपरलेटिव में दिया है, आप लोग दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर पॉजिटिव और योर कंपैरेटिव. अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका. एंड कंपैरेटिव में क्या होगा, नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रिचर. देखो, रिच, रिचर एंड रिचेस्ट, तो इज रिचर देन अमेरिका. दिस इज योर कंपैरेटिव. And iron is more useful than any other any other metal. तो क्या यहाँ पे ये कंपैरिजन दे दिया है, कंपैरेटिव डिग्री दिया है. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर सुपरलेटिव में करेंगे तो मोर यूजफुल का मोस्ट यूजफुल हो जाएगा. आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, एंड नो अदर मेटल इज सो यूजफुल, नेगेटिव है, एज आयरन. अब पॉजिटिव को देखो, वैभव इज एज क्लेवर एज खुशहाली. यहाँ पे सीधा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो वी कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री. वी हैव ओनली वन, दैट इज कंपैरेटिव. दैट इज खुशहाली इज नॉट क्लेवर. बराबर है, खुशहाली इज नॉट क्लेवर देन वैभव. तो देन इट इज योर कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट, ये तो ऐसे एग्जांपल्स थे जहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्रीज है. सो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव सेंटेंसेस डिग्री बिगिन if this begin with no other, but if the question says one of the or most other, then the change of degree will begin with few others or very few. जैसे कि देखो एग्जांपल, अशोका was one of the greatest of kings. तो ऐसा नहीं लिख सकते कि no other king is as great as. ठीक है, very few kings were as great as Ashok. Then next,
आई लाइक चिराग देन मोस्ट अदर फ्रेंड्स, देखो मोस्ट अदर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई लाइक वेरी फ्यू फ्रेंड्स मोर देन आई लाइक चिराग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये चेंज द डिग्री खत्म हुआ। नाउ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के पास सिर्फ और सिर्फ वन वर्ब होगा, ठीक है, whereas कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स के पास दो दो वर्ब होंगे। फिर फॉर मेकिंग अ सिंपल सेंटेंसेस आप लोगों को कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, फ्रेजेस यूज करने हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन हैविंग etc can be used. Note that gerunds क्या होते हैं, ing like होते हैं ना, eating, drinking, coming, वो सब हम लोग gerunds बोलते हैं। तो note that gerunds and infinitives can also be used to make simple sentences. तो gerunds किसको बोलते हैं, words that ends with ing like eating, drinking, coming etc. Whereas infinitives किसको बोलते हैं, are the forms used to, like to eat, to drink, to come etc. Gerunds and infinitives are not verb but they do the work of verb, ठीक है, वो verbs नहीं है लेकिन verb का काम करते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, how to convert the given sentences into सिंपल सेंटेंसेस। देखो, ही टुक ऑफ हिज हेड एंड सेट ऑफ, तो टेकिंग यहां से ये ले लिया आईएनजी, टेकिंग हिज हेड, ही सेट ऑफ, खत्म हो गया, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, तो क्या करना है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, एंड दे sorry that you should be present is essential, your presence is essential, खत्म, ठीक है। ओनली सिंगल वर्ब, जहां पे भी देखोगे यू विल गेट अ सिंगल वर्ब, एंड अगर वर्ब नहीं है तो ये आईएनजी है, गेरेंट्स है या टू विन है, इंफिनिटिव्स है, वो आप लोगों का वर्ब का काम करते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए रूल्स क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस हैज टू और मोर वर्ब्स, जैसे बताया। अब कंपाउंड सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड बाय formed by using conjunctions like, कौन से conjunctions यूज कर सकते हैं, but, and, or, either or, neither nor, not only but also, yet, otherwise, therefore, so etc. ये सारे जो words अगर आप यूज करते हो, then and then you can say that is your compound sentence, या compound sentence बनाने के लिए ये सारे words या conjunctions का आप लोगों को यूज करना है। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। Unless you work hard, you will fail. Work hard or you will fail. I have found the pen that I had lost. I had lost a pen, but I have found it. I am certain that he has made a mistake. He has made a mistake and I am certain about it. तो ये सारे जो और है, but है, and है, ये conjunctions है, ये conjunctions use करके हम लोगों ने क्या बनाया है, compound sentence बनाया है। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी दो वर्ब होते हैं और इसके जो कंजंक्शंस है वो थोड़े डिफरेंट है एज कंपेयर टू योर कंपाउंड, उसमें डब्ल्यू एच ज्यादा होगा, नो सुनर, बट, यूज टू, रिमूव टू, ये सब हो सकता है, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज टू और मोर वर्ब्स, बट व्हाट डिफर्स it from a compound sentence is the conjunctions। तो conjunctions कौन से है, who, what, when, where, how, why, because, that, since, though, as, if, although, which, after, while, until, before, whose, whom, unless, whoever, whatsoever, whatever, wherever, whomever, hence, thus, for, as soon as, no sooner than etc. ये सारे words जो है अगर आप लोग यूज करते हो, अगर कंजंक्शंस ऐसे यूज करोगे तो ही आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चिनाएगा। चलो नाउ certain examples of complex sentences. On seeing the snake, I ran away. So as soon as I saw snake, I ran away. Then he did not work hard and so he failed. He failed because he did not work hard. We eat to live. We eat so that we may live. ठीक है। सो एज सुन एज हो गया, बिकॉज हो गया, दैट हो गया, ये सारे जो कंजंक्शंस है दैट मेक्स योर सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स।
Okay, so that was your simple, compound and complex sentences. नेक्स्ट इज यूज नो सूनर देन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कैसे यूज करना है नो सूनर देन, ठीक है, तो रूल्स देख लो। रूल नंबर वन, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहला अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नो सूनर डू या डज। अब डू और डज कब आएगा, डू अगर है तो आई, जैसे वो टेबल में देखा ना वैसे ही आई वी यू दे, तो डू यूज करना है। डज कब यूज करना है, ही शी इट अगर आता है तो डज यूज करना है। तो नो सूनर डू या डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब then the rest of the sentences. You can note if the subject of the sentence is I, we, you, or they, use do in no sooner than. And if the subject of the sentence is he, she, it, use does in no sooner than sentences. अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं। When the sun sets, देखो sets मतलब कहाँ से क्या होगा, does आएगा, the cattle return home. No sooner does the sun set, अब does use किया मतलब यहाँ से s निकल जाता है। No sooner does the sun set then the cattle return home. हमेशा एक चीज याद रखो, then के बाद कॉमा नहीं लगता है। अगर कॉमा लगाओगे तो आप लोगों का ये वापस पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट, as soon as Hetvi leaves home, her brother puts on the TV. Hetvi leaves है, that means again your does will come. So no sooner does Hetvi, अब leave यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने does ले लिया है तो leave home, then her brother puts on the TV. As soon as we go out, you shut the door. No sooner, अब देखो we go, we है we, तो we के साथ कौन सा verb आएगा, तो we के साथ आएगा did we go out, then you shut the door. ठीक है। Now next, if your sentence is past tense, बराबर है, if the sentences is in the past tense, we use did with all the subjects. ठीक है, तो when the hunter saw the tiger, he climbed a tree. यहाँ से पता चलता है कि ये past tense है। So no sooner, अब यहाँ पे हम लोगों को याद यूज करना है did. No sooner did the hunter see, saw का see हो जाएगा, the tiger, then he climbed a tree. As soon as the baby boy walked, his parents rejoiced. तो no sooner did the baby boy walked का हो जाएगा walk, ठीक है, his parents rejoiced. When the minister awarded the prizes, everyone clapped. No sooner did the minister award the prizes than everyone clapped. ठीक है, आपका जो भी ये saw है, walked है, awarded है, when we use the word did, वो past tense से वो क्या हो जाएगा उसका सॉ, वॉक्ड और अवॉर्डेड वो अपने प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। सॉ का सी हो जाएगा, वॉक्ड का वॉक हो गया और अवॉर्डेड का अवॉर्ड हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यूज या रिमूव टू। सबसे पहले हम लोग रिमूव टू देखेंगे। रिमूव टू में जनरली इन अ सेंटेंस व्हेन वी रिमूव टू वी नीड टू यूज सो दैट। अगर ऐसा सेंटेंसेस आएगा ना, कोई भी सेंटेंस हो अगर जिसमें रिमूव करना है टू को, तो वी नीड टू यूज, क्या यूज करना है, सो फिर डॉट 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 दैट। Also remember that if a sentence is containing to is affirmative, अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव वाला है तो उसका नो सो दैट वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर सॉरी कंटेनिंग जो सब्सटेंस सॉरी सेंटेंसेस है अगर वो टू वो नेगेटिव रहा तो आपका जो सो दैट वाला सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। चलो देखो रूल नंबर सॉरी एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज टू प्राउड टू कन्फेस हिज गिल्ट। देखो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो जब आप लोग उसका रिमूव टू करोगे, ठीक है, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, नेगेटिव हो गया, कन्फेस हिज गिल्ट। ही वॉज टू ओल्ड टू लर्न न्यू थिंग्स, अगेन पॉजिटिव अफर्मेटिव। ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट लर्न फ्यू थिंग्स, ठीक है। देन last, I am too tired to walk any further. So I am so tired that I cannot walk any further. ठीक है, या any further। Used to, अब
टू जब यूज करना है तो सबसे पहले सो दैट निकाल देना है, और दूसरा अगर नेगेटिव है सो दैट तो आपका यूज टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मतलब। और अगर सो दैट नेगेटिव है, सॉरी सो दैट अगर पॉजिटिव है तो टू वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। Generally, in a sentence, when we want to use to, we remove so that. Also remember that if a sentence containing so that is affirmative, the sentence containing to becomes negative and vice versa. Example, it is so dark that we cannot see anything. ये negative है. So it is too dark to see anything. He was so stupid that he could not learn a single thing. He was so stupid he was too stupid to learn a single thing. He is so weak that he cannot run fast. So he is too weak to run fast. Okay, that's the end of our session. Thank you very much. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.